अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा डिस्क्लेमर रीड कर दूं। आई नो ये आपको अब तक याद हो चुका होगा, मुझे भी ऑलमोस्ट हो गया, बट स्टिल आई वांट टू रीड इट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर जस्ट टू मेक श्योर दैट वी नो इट. In preparation of this lecture, materials have been taken from different online sources in the shape of books, websites, research papers, and presentations. However, the lecturers, so I, do not have any intention to take any benefit of this in my own name. This lecture is prepared and delivered only for educational purposes and is not intended to infringe upon the copyrighted material. Sources have been acknowledged where applicable. The views expressed are mine and do not necessarily represent actual author or the institution. Coming to the reading, हमारी जो इस मॉड्यूल की फर्स्ट रीडिंग है, उस रीडिंग का नाम है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली. ये रीडिंग बहुत रेलिवेंट है. ये डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है. मेनली जो ख़वातीन और बच्चों के साथ फैमिली के अंदर होती है और कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले इसका मैं एब्स्ट्रैक्ट रीड कर देती हूँ ताकि हमें एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि इस रीडिंग में क्या, और फिर मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूँगी इस पूरी रीडिंग का. While intimate partner violence, intimate partner कौन होता है? आपका हस्बैंड, मंगेतर, समटाइम्स in other cultures maybe boyfriend girlfriend, so they are intimate partners. तो जब हम intimate partner violence की बात करते हैं पाकिस्तान में maybe spousal violence या domestic violence जो हस्बैंड या वाइफ की तरफ से अपने इंटीमेट पार्टनर पे होती है, वो होती है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अगेंस्ट women and violence against children, यानी बच्चों के ऊपर तशद्दुद, have emerged as distinct field of research and programming. A growing number of studies demonstrate the extent to which these forms of violence overlap in the same household. यानी ये दोनों काइंड्स ऑफ वायलेंस अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, उनके ऊपर अलग अलग बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी रिसर्चेस और रिसर्चर्स कहते हैं कि ये दोनों तरह के वायलेंस यानी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ओवरलैप करते हैं. एक ही घर में ये दोनों चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जिस घर में डोमेस्टिक वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है वहाँ बच्चों के ऊपर भी वायलेंस होता है. However, existing knowledge of how and why so much co-occurrence takes place is limited, particularly in the global south to developing world, including Pakistan or South Asian दीगर हमारे कंट्रीज वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, बट ओवरऑल भी लिटरेचर मिसिंग है जिससे हमें पता चले कि ये ओवरलैप या ये को अकरेंस क्यों है. The current study aims to advance empirical and conceptual understanding of intersecting intimate partner violence and violence against children within families in order to inform potential programs. इस रिसर्च का मकसद ये है कि वो उस इंटरसेक्शन के ऊपर, उस ओवरलैपिंग के ऊपर और हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करें. The authors explore shared perceptions of experiences of intimate partner violence and violence against children using qualitative data collected in December 2015 from adults and children in Kampala, Uganda. And the data was collected from 106 participants. We find that patriarchal family structure creates an environment that normalizes many forms of violence, simultaneously infantilizing women and reinforcing their subordination alongside children. यानी बच्चों के साथ साथ खवातीन के ऊपर भी जो पेट्रियार्कल सेटअप में फैमिलीज हो रही हैं वो वायलेंस को वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होता है खवातीन और बच्चों के खिलाफ, और वो औरतों की सबॉर्डिनेशन को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं. Based on participant experiences, we identify 4 potential patterns that suggest how intimate partner violence and violence against children not only co-occur but also more profoundly intersect within the family, triggering cycles of emotional and physical abuse. तो इन ऑथर्स ने 4 पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी बेसिस पर उन्होंने देखा कि फैमिली में कैसे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एक साथ हो रहे होते हैं और इंटरसेक्टिंगली हो रहे होते हैं, एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, जिससे इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ का साइकिल बढ़ता जा रहा है. बायस्टैंडर ट्रॉमा, नेगेटिव रोल मॉडलिंग, प्रोटेक्शन एंड फर्दर विक्टिमाइजेशन,
एंड डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। ये 4 पैटर्न्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी बेसिस पे वो कहते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होती है, इंटरसेक्ट होती है और बढ़ता रहता है ये। The discussion is suited within a feminist analysis including careful consideration of maternal violence and an emphasis on the ways in which gender and power dynamics can coalesce and contribute to intra-family violence. अब हम देखते हैं कि कैसे ये चारों पैटर्न्स इन चारों पैटर्न्स को कैसे इन ऑथर्स ने आइडेंटिफाई किया है और ये चारों पैटर्न्स के बारे में और डिटेल्स। तो बैकग्राउंड में उन्होंने बताया हुआ है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होती क्या है। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत सारे लिटरेचर साइट किया हुआ है। ये जब आप लोग पढ़ोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। ओके, पेट्रियार्की एज अ क्रॉस कटिंग रे। इधर इन्होंने पेट्रियार्की के बारे में बताया और बताया कि कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटीज में ये रिस्क और ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का रिस्क बढ़ जाता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीमेट पार्टनर और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन युगांडा, इन्होंने कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि युगांडा में बहुत हाई रेट्स हैं। नियरली 56% ऑफ एवर मैरिड women रिपोर्टेड फिजिकल or sexual intimate partner violence in their lifetime. Or between 74 and 98% of children experience physical, emotional, sexual violence or neglect, with much of this violence carried out by caregivers. यानी उनके caregivers की तरफ से उनको 74 से 98% बच्चों को violence का सामना करना पड़ता है। ये युगांडा में लो इनकम सेटिंग्स में रिसर्च हुई थी। कंपाला सिटी में 106 पार्टिसिपेंट्स थे। 4 ऑफ 7 विलेजेस उन्होंने सिलेक्ट की थी। ये मेथडोलॉजी आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। दिस इज इससे ना सिर्फ आपको ये समझ आएगा बल्कि आपको आइडिया होगा कि आप अपनी मेथडोलॉजी कैसे लिख सकते हैं, कि इन्होंने छोटी छोटी डिटेल्स भी बताएं और कैसे फिर वो डिटेल्स हेल्पफुल होती हैं समझने में कॉन्टेक्स्ट रिसर्च का। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने 16 फोकस ग्रुप डिस्कशंस की हैं। हर ग्रुप में 4 लोग थे और 20 इन डेप्थ इंटरव्यूज़ किए हैं। दिसंबर 2015 में टोटल 106 पार्टिसिपेंट्स थे। ये डिटेल भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। बच्चों के लिए उन्होंने एथिकल गाइडलाइंस कैसी की, उन्होंने ड्राइंग और फोटो एलिसिटेशन मेथड यूज़ किए डायरेक्ट पूछने के बजाय। ये देखिए आगे कुछ फ़ोटोज़ हैं, मे बी उन्होंने बच्चों को ये फ़ोटोज़ दिखाई या बच्चों ने मे बी ये ड्रॉ की। सो दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक या सो दिस इज़ फोकस ग्रुप डिस्कशन विगनेट 1। तो उन्होंने ये बनाई पिक्चर्स और उन्होंने बच्चों को दिखाई और कहा कि इससे आपको क्या समझ आ रहा है। ये उन्होंने पार्टिसिपेंट्स का ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है, जो मैं आप लोगों को आई डोंट नो आप लोगों को या किसी और क्लास को मैं प्रेजेंटेशन में कही थी कि आपने ब्रेक डाउन नहीं दिया हुआ अपने पार्टिसिपेंट्स का, जिसकी वजह से कुछ हम डेटा को कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे। देखो उन्होंने बताया कितनी मदर्स थी, फादर्स, डॉटर्स, सन्स, उनकी एज, उनके बच्चे कितने थे, एजुकेशन, उनका रिलीजन। ओके, सो कमिंग टू द फाइंडिंग्स, परसेप्शंस ऑफ वायलेंस। इसमें सबसे पहले उन्होंने परसेप्शंस ऑफ वायलेंस बताया है और उन्होंने बताया कि ओवरलैपिंग था हाउ पार्टिसिपेंट्स डिस्क्राइब and interpreted violence, intimate partner violence or violence against children, reflecting strong acceptability of both forms of violence, often using similar language. यानी एक्सेप्टेंस बहुत थी वायलेंस की। जैसे हमारे यहाँ भी बच्चों को कि हर बात पे हम अक्सर कह देते हैं कि ये नहीं करोगे मार पड़ेगी, पिटाई होगी, थप्पड़ पड़ेगा, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की भी एक्सेप्टेंस काफ़ी है कि अगर हस्बैंड की बात नहीं मानेगी तो मार खाएगी। विद टाइम ये चेंज होता जा रहा है बट एक्सेप्टेंस इज स्टिल देयर और उसकी जस्टिफिकेशंस बहुत सारी हो गई हैं। सेम वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में भी था। Adult and child participants frequently normalize violence as discipline, यानी किसी को डिसिप्लिन करने के लिए violence, as a means to enforce gender norms, gender norms को जेंडर डिसिप्लिन करने के लिए मे बी कि लड़कियां ऐसे नहीं करती या लड़के ऐसे नहीं करते तो उसके लिए वायलेंस, एन एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी।
थर्ड था कि वो अपनी मर्दानगी शो करने के लिए वायलेंस करते कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, इस तरह के हमारे यहाँ भी होते हैं ना, अम, बातें मुहावरे यूज होते हैं, सो वहाँ पे भी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेस्कुलिनिटी वायलेंस था. Participants also recognized that poverty and alcohol could exacerbate these dynamics in ways that trigger or escalate intra-family violence, and in some cases define limits to acceptable violence. ये एक फादर, ये आगे उन्होंने कुछ कोटेशंस दी हैं. एक फादर ने कहा हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेरेंट्स कैन डू to prove their love for their children is to raise them up with discipline and to prepare them to be able to sustain themselves in future. और इस डिसिप्लिन के लिए भी वॉयलेंस यूज़ की जाती है. जैसे हमारे में कहते हैं कि माँ बाप का एक बाप का कितनी माँ का खाया हुआ थप्पड़ माशरे के 50 थप्पड़ों से बचा लेते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन करने के लिए वॉयलेंस जस्टिफाइड थी. ये एक बेटे ने कहा हुआ है, डिसिप्लिन इज़ फॉर देयर ओन गुड एंड इट विल इनेबल देम, यानी बच्चे, टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज इफ दे, so the parents, ignore a child and let them continue as a thief or drug addict, but if they beat you today and you realize the habits they don't want, you drop the other habits and become a better person. So अगर किसी का, कि अगर पेरेंट्स इग्नोर करें और जो चोरी कर रहा है या ड्रग एडिक्ट बन रहा है उसको बनने दें तो उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा. तो अच्छा है कि वो अभी उसको मारे, उसकी पिटाई करें ताकि वो अपनी गंदी हैबिट्स छोड़ दे. Similarly, एक मदर की प्रोटेक्शन है. Sometimes it is right to shout at your wife because there are times a wife behaves like a young child at home. If you are not tough with her, she might fail to understand. There are things that she does, and you feel that you have to shout at her to put a stop to it. You scare her a little bit. It's appropriate. ये एक माँ बोल रही है. ये आगे भी कोटेशंस हैं, ये आप लोग पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट माइंड में बिल्ड होता जाएगा. जैसे ये डॉटर का उन्होंने बताया था, इफ द वाइफ हैज डन समथिंग रॉन्ग इट कैन फोर्स हर हस्बैंड टू बीट हर, लाइक इफ ही हैज नॉट कुक्ड फूड he gave her money for food and she spent the money, or maybe she came back late at night and found her husband already back home. तो ऐसी बातों पे मार पड़ना जायज़ है. ये पेट्रियार्कल जेंडर नॉर्म थे वहाँ की सोसाइटी के, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा कॉन्टेक्स्ट था, कैसा सेटअप था. ये उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया हुआ है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस का और परसेप्शन ऑफ वायलेंस का, और कैसे वो 4 पैटर्न जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे उसकी वजह से वायलेंस ट्रिगर होती जाती है या बढ़ती जाती है. Bystander trauma, negative role modeling, protection, and further victimization displace aggression. और पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर्स में उन्होंने बताया कि वायलेंस एज डिसिप्लिन यूज़ होता है, वायलेंस एज एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी यूज़ होता है, और वायलेंस टू एनफोर्स जेंडर नॉर्म्स. और अल्कोहल और पॉवर्टी उसको कैसे ज़्यादा कर देता है. ये आगे भी डिस्कशन, ये फाइंडिंग्स कंटिन्यू हुई हैं. यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कोटेशंस लिखी हुई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आप लोग पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा. फॉर एग्जांपल ये मुझे एक डॉटर वाली वाइफ बीटिंग से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी. व्हाट ही डिड इज़ रॉन्ग बिकॉज ही इज़ बीटिंग हिज वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ हर चिल्ड्रन. इफ ही हैड डिसिप्लिन्ड हर फ्रॉम द बेडरूम देन ही वुड हैव बीन राइट. सो उसको प्रॉब्लम ये नहीं लगा कि उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा है, उस लड़की को, बल्कि उसको प्रॉब्लम ये लगा कि बच्चों के सामने मारा है. और वो कह रही है कि अगर उसने बेडरूम में उसको डिसिप्लिन कर दिया होता तो फिर ठीक तरीका था, पर बाहर मारना इज नॉट ठीक. मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़कियों की लगे. लड़कों का तो इट वाज मे बी एक्सपेक्टेड. मदर्स की और डॉटर्स की मुझे बड़े अनएक्सपेक्टेडली इजाज़त देने वाले या वेलकमिंग लगे, विच इज़ स्ट्रेंज. ये उसने लिखा एक डॉटर ने, इट इज़ नॉट गुड टू फाइट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे विल गेट द सेम इमेज एंड विल कीप इट इन देयर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, आई मे डिसाइड नेवर टू मैरी इन द फ्यूचर thinking the man is going to. This was a bit different than what other daughters were saying earlier. अच्छा, आगे आते हैं पैटर्न्स पे जो हम इंटरसेक्टिंग
इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के पैटर्न्स थे। जो फर्स्ट था बायस्टैंडर ट्रॉमा। बायस्टैंडर कौन होता है? जो जैसे हम सड़क पे गुजरते हैं तो साइड पे लोग खड़े होते हैं ना, पासर बाय, जो सिर्फ देख रहे होते हैं, तमाशाई। So that is a bystander. The most common example of intersecting intimate partner violence and violence against children occurred when one family member, most commonly a child or sometimes a mother, experienced trauma associated with witnessing their father or husband perpetrate violence against another family member. Several children emphasized their emotional distress after seeing their father perpetrate intimate partner violence, describing this experience as sad and bad, as well as triggering hatred for their father and wanting to revenge against. जैसे एक डॉटर ने कहा, आई वुड फील बैड, वी ऑल फील बैड seeing our mother is beaten or being mistreated in such a way. I would hate the situation and hate myself as well. So basically जो लोग किसी अगर 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 वॉयलेंस किसी एक फैमिली मेम्बर पे हो रहा है, जैसे बच्चे पे या बीवी पे, और बाकी सब सिर्फ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉयलेंस एक ही जगह पे हो रहा है, बल्कि इमोशनल वॉयलेंस और ट्रॉमा सब फैमिली मेम्बर्स पे हो रहा है जो देख रहे हैं, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड, दे आर एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप है। सो ऐसा नहीं होता कि थप्पड़ मारा और वो ख़त्म हो गया, बल्कि उससे रिवेंज और बैड और सैड और ट्रॉमा की फीलिंग बाकी सब बायस्टैंडर्स या जो लोग देख रहे होते हैं उनमें रहती हैं। Children and women also offered examples of how mothers suffer emotionally when witnessing their husbands beat their children, particularly when this violence was perceived as too extreme or otherwise unjustified. ये एक mother लिख रही है, when the father turned to the children, the mother cried so much. Because here she had endured the pain from his beating because she knew that the children were safe. But when he turned to the children, she even put her hands on the head and wailed aloud. She was not crying because he had beaten her, but because he was beating her children. Most times, we, the mothers, go through strong pain whenever something bad happens to our children. You imagine even the chicken and the goats react when you touch their young ones. Now, how about us women? ये एक ऐसी किसी आदमी ने अपनी बीवी को मारा अर्लियर और वो पेन में थी और उसको मार पड़ी थी, बट शी वॉज ओके, शी न्यू के बच्चे सेफ हैं, पर जब उसने बच्चों को मारना शुरू किया तो उस औरत ने चीखना और रोना शुरू कर दिया, नॉट बिकॉज उसको मार पड़ी थी बट बिकॉज उसके बच्चों को मार पड़ी। सो दैट इज इवन मोर ऑफ अ ट्रॉमा फॉर सम वुमेन। ठीक है, सो ये बायस्टैंडर ट्रॉमा था। सेकेंड पैटर्न है नेगेटिव रोल मॉडल। एज नोटेड अबाव, नेगेटिव रोल मॉडलिंग क्या है? Participants consistently contested men's use of intimate partner violence in front of children. सब participants ने अपोज किया इस आइडिया को कि खावन को बच्चों के सामने बीवी को वायलेंस नहीं करनी चाहिए. While most often discussed hypothetically in terms of future consequences, participants also linked children's exposure to immediate impacts on mothers, diminished respect or dignity in the eyes of their children, with some associated with undermining women's responsibilities as mothers. Such examples were shared by children and adults. However, women most often articulated this potential loss of value and emotional connection. यानी नेगेटिव रोल मॉडल्स बच्चों के लिए सेट हो जाते हैं और वो औरतों की मदर और बाकी सब खवातीन की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को अंडर वैल्यू करने लगता है. ये एक मदर लिखती है, there is no way you can grab your wife and start beating her when your children are looking. You are not supposed to do it there. At least take her to the bedroom. Talk about those issues from there and resolve them in the bedroom without you despising her in the presence of her children. Because even her children will not respect her as their mother. They will also despise her. They will disrespect her and even disobey her whenever she asks them to do something. बिकॉज उनकी रिस्पेक्ट बच्चों की नज़र में माँ की रिस्पेक्ट कम या वर्थ कम हो जाती है, तो बच्चे भी जब किसी एक बंदे का ऐसा इमेज जाता है कि इसकी रिस्पेक्ट कम है, तो बच्चे भी उसको डिसओबे करते हैं या बात नहीं मानते. सो दिस इज नेगेटिव
role modeling. Third है protection and further victimization. Analysis of disclosure data uncovered several instances where a child or mother attempted to intervene against a violence, resulting in further violence and illustrating another potential intimate partner violence और violence against children intersection. यानी protection, अगर कोई जैसे अगर किसी माँ को मार पड़ी और बच्चा बीच में बोलता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है, या अगर बच्चे को मार पड़ी और माँ बीच में बोलती है, तो उससे वॉयलेंस सम इन कुछ इंस्टेंसेस में इंक्रीज हो जाती है और एक और सर्कल चल पड़ता है. ये एक मदर बताती है, देयर इज अ 7-year old child आई सॉ इन माई नेबरहुड when he saw his father beating his mother. He went inside the house, picked a bottle, and hit his father on the head. He felt bad seeing his father beating his mother. यानी बच्चे ने उसको मारा. अब आपका क्या ख्याल है कि जब वो बाप थोड़ा सा रिकवर होगा तो बच्चे के साथ कैसे सलूक करेगा, और माँ के साथ फिर वो सारी उम्र के एक तो ताने भी बन जाते हैं और फिर और वॉयलेंस का सर्कल और ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है और ज़्यादा विक्टिमाइज करने लग जाएंगे वो बच्चों को और उसकी माँ को. और ये एग्जाम्पल्स बच्चों ने भी शेयर की. और लास्ट फोर्थ पैटर्न था डिस्प्लेस्ड एग्रेशन. Personal experiences also exposed how intra-couple conflicts could lead to displaced aggression against children. Participants most frequently discussed such situations as an extension or redirection of the violence women experience from their partners, suggesting that a woman may transfer anger or stress to their children at times, also acknowledging a woman's powerlessness whether with her husband because she cannot fight you. यानी अगर वो कहते हैं ना कि माँ की जब माँ बाप की लड़ाई होती है तो फिर माँ जो है वो बाकी बच्चों को सबको डांटना और मारना शुरू कर देती है. तो दैट इज डिस्प्लेस्ड एग्रेशन. कहीं का गुस्सा गुस्सा कहीं निकालना, बिकॉज शी कैन नॉट फाइट विद हर हस्बैंड डायरेक्टली, तो वो अपने से कमज़ोर पे गुस्सा निकालने लग जाती है. एक फादर ये कहते हैं द रीजन चिल्ड्रन आर बीटन इज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एट होम. फॉर एग्जांपल द वाइफ विल टेल यू, here are your children, you don't want to feed them. She will act out of anger, and because she cannot fight you, she will transfer the anger to the children and beat them. कि ये लो अपने बच्चे पकड़ो, खुद खाना खिला लो. तो वो बच्चों के अगेंस्ट भी वायलेंस होती है क्योंकि वो डायरेक्टली हस्बैंड या जो जहाँ से उनको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है वहाँ पे निकाल नहीं सकते. सो ये 4 पैटर्न्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से ये वॉयलेंस, यानी ये 4 पैटर्न्स थे जो वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं. इन 4 पैटर्न्स की वजह से ये दोनों चीज़ें को अकर करती हैं एट द सेम टाइम. दैट्स इट अबाउट द आर्टिकल. प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड करें. इजी लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, मैंने ओवरव्यू दे दिया है तो आपको अच्छा आसानी से समझ आ जाएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो. यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट एन ईमेल टू मी, और यू कैन राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट मीटिंग जो हम ऑनलाइन सेशन करेंगे उसमें. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.